Honorable Shri Taureji, Minister for HRD for the Government of Maharashtra. Ladies and gentlemen, a very good morning to all of you and a very warm welcome to the second edition of the Future of Learning Summit organized by the Economic Times. So Future of Learning, while the topic or the theme of the summit is how we chart a course for the future, I think it's important that sometimes in order to do that, one takes a step back and looks at the past and looks at all the learnings that the past can throw to you. So education has always been seeped into Indian culture. From time immemorial, we've been known as a society that's rooted in education. You go back very long ago to the Upanishads, the Vedas, and what they did for Indian society then. In much more recent history, look at institutions of very high caliber like Takshila, Nalanda, etc. And you saw the correlation between whenever education was at the prominent forefront, how societal development happened as a whole. In fact, it is so rooted in Indian culture that we believe that, and there's a popular saying that the route to Lakshmi, or the goddess of wealth, goes via Saraswati, which is the goddess of knowledge. And that's not true only for us. If you look at most developed countries in the world today, you will see that one of the key reasons for their economic success or their societal success has been the fact that they've pioneered and created a fantastic education system that is long lasting. Unfortunately, not all is well with the Indian education system. And today we've become a degree crazy nation. So Saraswati, which is knowledge, has actually been replaced by degree. So we unfortunately tend to chase degrees in order to obtain Goddess Lakshmi rather than actually go in the pursuit of knowledge. And I think this is a fundamental factor that needs to change. If you look at, in the last 5 or 6 months, we've heard this phrase very often, that we are the world's youngest nation. In fact, our Honorable Prime Minister Ji has been mentioning the potential of the power of 500 million strong workforce in pretty much every forum that he addresses. I'd just like to put a small warning sign up here that, of course, it's a very well-known fact that this is an enormous potential that we must harness. But in order to harness this, it is important that we, the people in this room, the education industry and the government, come together to give this workforce the right tools, the right platforms to be able to skill themselves. Because if you don't skill this extremely large and young workforce, then you're perhaps sitting on a little bit of a ticking time bomb. And I think the onus is on the industry as well as the government to come together and ensure that we do everything that is in our power to try and transform the Indian education system to ensure that skilling becomes a part of our culture. And when I mean skilling, I don't mean it only at the higher education level. It perhaps can be started even at the later stages of the schooling system that we have here as well. Why do I say this? I'll give you 2 examples that are, I think, exemplary and stand out by nature. If you look at countries like Germany and Japan, the first thing that comes to your mind is that these countries are at the top of the technological pyramid and technological advancement across the world today. But just examine these countries very closely for a while. These are 2 very small countries, much smaller than India. They are landlocked. They do not have the access to natural mineral resources that India does. Yet, they are far ahead of us right now in terms of technological advancement. And why is that? Japan has 1 lakh vocational training institutes in the country today. Germany has 2 lakh. India stands at about 12,000 odd. Right? So there is a dire need for us to sort of start inculcating this habit of skilling people, skilling our youth while they are in the process of learning, and not wait for vocational skills to be imparted after the process of higher learning is completed. On our part, the Times of India has always recognized the criticality of education and the role that it can play in India's growth. Our newspapers and our media have always reported extensively on the education sector. Some of you may be aware that last year we launched
a new business, and this is the first step in a series of forays that we will have in the education sector. Last year we launched a business called Times Pro, which essentially will serve to act as a bridge between the higher education industry and the students that pass out from there and the needs of India Inc. or corporate India. We've already established our centers across 15 cities, and we hope to take it to the top 50 cities in India in the next 2 years or so. We're also very acutely aware that the task amongst us is so large that it can't be done by any large entity on its own. So we have actually embraced the concept of partnership with open arms. We are currently, as we speak, in the process of tying up with all the large universities that are open to a tie-up with us across the country to try and see how we can sort of be their skilling arm and how we can leverage not only our media might, but also our access to 11,000 or 12,000 of our corporate clients, and ensure that the youth, when they pass out of India's education sector, are also given adequate opportunities of employment by our 12,000 odd clients. Lastly, before discussions, I would also like to talk about ET Edge, the platform under which this summit is being held. We create platforms like this only so that we can be the focal point of deliberation for all industry sectors, so that people like you across industries can come together and deliberate about issues. We will try and see at all these forums that we have adequate representation from all sections or all parts of the ecosystem, which is government, bureaucracy, as well as the sector itself, so that what deliberations are done are actually the voices are heard to the right people, and so meaningful action can be taken. Ladies and gentlemen, I hope you have a very insightful and pleasant day today. Thank you. That was President, Times Conference Limited, Bennett Coleman Company Limited, Mr. Deepak Lamba. Thank you, sir, for a warm welcome and for setting the tone of the event. May I now request you, sir, after the welcome, to please escort our Honorable Minister to the lighting of the lamp. I'd also like to request other eminent personalities amongst the crowd of eminent personalities that we have here to join us with the lamp lighting. Please welcome Chair, AICTE, Dr. S.S. Mantha, the Pro-Vice Chancellor of the University, Dr. Naresh Chandra. We also have Mr. Sunil Karve, Founder Trustee Committee and Chairperson Governing Board of Kohinoor Education Trust, and of course, Mr. Deepak Lamba. Laying the lighting of the inaugural lamp at the hands of the Honorable Minister for HRD, Government of Maharashtra, Shri Vinod Tawde. I'd like to request a quick photo opportunity around the lamp with all our lamp lighters. After the welcome and lighting of the lamp, which symbolizes, of course, the dispelling of ignorance and the gaining of knowledge, very pertinent for today's conference, it's time now for the keynote. For the keynote, we are privileged to have the presence of the personality of the Honorable Minister for Human Resources Development, Government of Maharashtra, Shri Vinod Tawde, who steps up to the stage with a great deal of dynamism, with new leadership at the helm, with new vision, and we thank him for being with us here to share his vision and his expertise and knowledge with us. Ladies and gentlemen, to give the keynote, Shri Vinod Tawde, Honorable Minister, HRD, Government of Maharashtra.
First of all, I would like to thank Economic Times for organizing such a nice program. यहाँ पर उपस्थित सभी एजुकेशनिस्ट और उनके बीच में एक पॉलिटिशियन. I know how politician is been received in the educational campuses. अब ये क्या नया तीर मारने वाला है, आ गया और एक. Because that was the comment which I had also passed when I was in college. And in fact, when I was working in a student movement, when we were describing how the education in Maharashtra is, तो मैं एक गांव देहात की कहानी बताता था कि हर साल एजुकेशन के बारे में इंस्पेक्शन हुआ करता है. अभी तो काफी वो बंद हो गए. दैट वाज द टाइम कि एवरी ईयर देयर वाज इंस्पेक्शन इन स्कूल्स. एजुकेशन डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर आते थे, क्लास में आते थे, कुछ सवाल पूछते थे, जवाब देते थे, फिर ए बी सी ग्रेड, फिर ग्रांड चालू बंद उस पर तय होता था. तो एक गांव में ऐसे इंस्पेक्शन होने वाला था. अगले दिन तो एक दिन पहले क्लास टीचर क्लास के बच्चों को बोलते, देखो भाई कल इंस्पेक्टर आने वाला है, कुछ सवाल पूछेगा, जवाब देने हैं. जवाब नहीं दिया तो ग्रेड सी, तो ग्रांड बंद, हमारी तनख्वाह बंद, तुम्हारे स्कूल बंद. तो अपने को तैयार रहना है. ये 3 सवाल वो पूछेंगे, ये 3 जवाब आपको रट के आने हैं. क्लास टीचर को पता था कि अपने क्लास का इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, तो उसमें जो नंबर 1 से पास होता है उसको बोलते तुम यहाँ. तो बाकी किसी को आए ना आए, आपको तो पक्का पूछेंगे टीचर इंस्पेक्टर, तो ये जवाब आप पक्के रट के आना. तो कोई चिंता नहीं. घर जाते हैं और घर जाने के बाद उसको पता चला, अरे कर तो इंडिया पाकिस्तान वनडे क्रिकेट की मैच है. तो फिर स्कूल को तो जाना ही नहीं है, लेकिन नंबर 1 से पास होने वाला बच्चा है, तो पड़ोस में जो नंबर 24 से पास होने वाला था उसी क्लास में, उसको ले देखो इंस्पेक्टर तो बाहर का है, थोड़ी उसको पता है नंबर 1 कौन, नंबर 24 कौन. ये 3 सवाल, ये 3 जवाब रट के जाओ, दे दो, बोले हो जाएगा. तो लड़का बोले चलो कम से कम एक दिन तो नंबर 1 हो गया. स्कूल में आता है, क्लास में जाता है, इंस्पेक्टर आते हैं, इंस्पेक्टर सवाल पूछते हैं, किसी को जवाब नहीं आता. फिर इंस्पेक्टर पूछते नंबर 1 से कौन पास होता है, खड़े हो जाओ. तो ये फर्जी नंबर 1 खड़ा होता है. और इस समय इंस्पेक्टर तीसरा सवाल पहले पूछते हैं, बाद में दूसरा और बाद में पहला. तो ये कंफ्यूज हो जाता है. इंस्पेक्टर बोलते तुम नंबर 1 से पास होते हो, इतने आसान सवाल का जवाब नहीं आता है. सर ईमानदारी में बताओ, नंबर 1 घर पे टीवी पे मैच देख रहा है, उसके बदले में मैं आया हूं. ये सुनकर इंस्पेक्टर क्लास टीचर पे गुस्सा होता है. आप इस क्लास के क्लास टीचर है, आपको पता नहीं नंबर 1 कौन, नंबर 24 कौन. सर ईमानदारी में बताओ, असली क्लास टीचर घर में मैच देख रहा है, उसके बदले में आया हूं. इंस्पेक्टर कहता है आज नसीब समझो असली इंस्पेक्टर नहीं आया जो मैच देखने बैठा है, बोले तुम्हारी नौकरी चली जाती है. ये सुनकर हंसी तो आती है, लेकिन फैक्ट इज दैट आजकल जो करिकुलम है वो पढ़ने के लिए बच्चों को कोई दिलचस्पी नहीं. बैंक यहां वहां नौकरी नहीं मिली तो टीचर बनने वाले 90% है आजकल. और एजुकेशन ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये देखने वाली जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, वो भी पहले पोर्टफोलियो बांटेगी, अर्बन डेवलपमेंट, फिर होम, फिर इरिगेशन, फिर पीडब्ल्यूडी, जहां मलिदा ज्यादा है, और बचा कुछ है तो फिर एजुकेशन. इस बार थोड़ा एक्सेप्शन हुआ ऐसा मैं आशा करता हूं, लेकिन दैट वाज अ फैक्ट. बट व्हेन आई वाज asked by our Prime Minister कि I have a proposal for you, either you take the power ministry, लोड शेडिंग मुक्त महाराष्ट्र करना है, या फिर महाराष्ट्र में ये जो एजुकेशन टुकड़ों में बांटा हुआ है वो मैं सब एक करना चाहता हूं. एंड यू बीन फ्रॉम द स्टूडेंट मूवमेंट, अगर दिलचस्पी है तो यू ऑप्ट फॉर दिस, आइदर ऑफ वन इज अ चॉइस. आई ऑप्टेड फॉर HRD then. क्योंकि स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, यूथ, स्पोर्ट्स, ये अगर सब साथ में इंटीग्रली सोचा जाता है तो वी कैन डू समथिंग. अदरवाइज अलायंस एरा में स्कूल एक के पास, हायर दूसरे के पास, टेक्निकल तीसरे के पास, मेडिकल चौथे के पास, ताकि सभी पार्टियां खुश कि वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग इन द एजुकेशन.
But first time, this time we have thought that we should think education as an integral part. और फिर ये सोचते समय जो challenges मैं सामने देख रहा हूं, एक तो class education and mass education. When I go through the जिला परिषद schools, अभी हमारे स्वच्छता अभियान चल रहा है, उस दिन मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस पे लगभग 700 ब्लॉक लेवल एजुकेशन वर्कर्स, हमारे जो ऑफिसर्स है, इंस्पेक्टर, उनसे बात कर रहा था कि एक एक दिन, जैसे आज का वर्ल्ड टॉयलेट डे है तो फिर स्कूल के टॉयलेट्स की सफाई वगैरह की बात कर रहा था। तो मैंने उनको पूछा कि कितने स्कूलों में टॉयलेट है, तो 95% अबो महाराष्ट्र स्कूलों में टॉयलेट है। वर्किंग कितने हैं? हाँ बोले सर ये सवाल असली है, 50% भी वर्किंग नहीं। और क्यों, कैसे होगा? इफ वी डोंट हैव वाटर रिसोर्स, पानी अगर वहां नहीं है तो टॉयलेट बांधकर भी वहां पर वो यूजेबल हो ही नहीं सकता है। अब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एकेडमिक्स तक की कई चैलेंजेस है। एज अ पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट होने के नाते जब मैं सोचता हूं स्कूल एजुकेशन के बारे में कि क्लासरूम टीचिंग की क्वालिटी और सिलेबस की क्वालिटी, कई बार जब मैं ऐसे किताबें पढ़ते रहता हूं स्कूल की, और या फिर स्कूल के कोई बच्चे मिले और उनको फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको शिवाजी क्या पता है बताओ, शिवाजी पूछने पर बच्चे क्या बोलते हैं कि उसने शाइस्ते खान की उंगलियां तोड़ी, अफजल खान का पेट फाड़ दिया, आगरा से भागकर निकले और सूरत को लूटा। इसके आगे शिवाजी क्या है? शिवाजी महाराज के एरा में ड्राउट मैनेजमेंट था, जंगल मैनेजमेंट था। आज जो वैट है वो चौथाई के नाम से शिवाजी महाराज के समय भी टैक्सेशन सिस्टम थी। आज जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात हम करते हैं वो इंटेलिजेंस एजेंसी शिवाजी महाराज और चाणक्य समय थी। अब ये उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन शिवाजी महाराज का, ये आज शिवाजी एज अ वॉरियर, शौर्य, ये तो आना ही चाहिए, लेकिन वो कितना आना चाहिए? आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ 60 इयर्स हम अभी भी शिवाजी महाराज वो ही पढ़ाएंगे या शिवाजी महाराज के समय में भी इस प्रकार की सिस्टम्स थी? एंड दिस इज व्हाट शिवाजी वाज नोन फॉर। ऐसे सिलेबस में हम कितने चेंजेस ला पाए हैं? और फिर ये लाते समय दूर दराज गढ़चिरौली के देहात के बच्चों के लिए भी वही सिलेबस, और एसएससी बोर्ड के मुंबई के स्कूल में फॉर एग्जांपल हमारे पार्ला का पार्लेटर स्कूल है, उसके भी वही सिलेबस। ये हाउ यू कैन गो सेम एट ए टाइम? ऐसे कई इश्यूज है कि एज एन एजुकेशन डिपार्टमेंट वी नीड टू एड्रेस इट। इसलिए फिर क्लासरूम टीचिंग क्वालिटी के बारे में, ई लर्निंग हो, लर्निंग प्रोसेस के चेंजेस हो, या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, या फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात जब नैक और स्टेट गवर्नमेंट का जो सैक है वो उस प्रकार से स्टैंडर्डाइजेशन के चैलेंजेस हो, मुझे लगता है कि जब भी हम ये सब बातें सोचते हैं तो व्हेन आई थिंक एज अ रोड मैप ऑफ गवर्नमेंट फॉर कमिंग सम इयर्स, तो चेंजिंग इन द सिलेबस पैटर्न, पेपर पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या हो, या फिर आगे चल के जब हम सोचते हैं तब एक्सपेरिमेंटल स्कूल्स, फ्रीडम ऑफ टू चूज द सिलेबस, ये सब बातें अगर लानी है तो वो एट ए टाइम क्लास एजुकेशन और मास एजुकेशन के लिए भी इंप्लीमेंट होना। और दिक्कत ये होती है कि स्कूल बस में कोई क्लीनर भी कुछ करता है तो जवाब एजुकेशन मिनिस्टर को देना पड़ता है। व्हेन आई बिकम एन एजुकेशन मिनिस्टर तो मुझे जो पहले कुछ मैसेजेस आए, फिर बाद में व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ट्विटर पे, तो एक ट्वीट क्या आया कि हम वर्किंग कपल है, हमारे बच्चों को स्कूल में छोड़ने और लाने की व्यवस्था सरकार ने करनी चाहिए। दीज आर द एक्सपेक्टेशंस, राइट और रॉन्ग छोड़ो, बट एट व्हाट लेवल पीपल एक्सपेक्ट व्हाट मेनी थिंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। और ये सब चैलेंज करते समय आप जैसे इंस्टीट्यूशंस who think to have a specific change in the education system,
उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, या स्किल डेवलपमेंट की बात आजकल जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मतलब वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की चर्चा तो राइट फ्रॉम 1970 सब कर रहे थे, लेकिन वो वोकेशनलाइजेशन अगर अभी प्रॉपर लेवल पे प्रॉपर क्लास में करना है, एंड when we want our growth rate to grow from 8 to 9% भी, 1% भी अगर बढ़ना है ग्रोथ रेट अपने देश का, तो अपना सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ 10% से 11% तक जाना पड़ेगा, जब एग्रीकल्चर ग्रोथ इज 4%. एंड इफ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सेकेंडरी टर्शियरी सर्विस सेक्टर, ये सेक्टर्स के स्किल्स सिखाने की व्यवस्था अपने देश में, अपने स्टेट में है क्या? इफ इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री की बात करते हैं, वी वांट टू रूल द वर्ल्ड थ्रू दिस ह्यूमन रिसोर्स, अगर ये सपना हम देखते हैं, तो वर्ल्ड की सभी ये सिस्टम्स चलाने की स्किल्स क्या हम हमारे बच्चों को अगले 10 साल में हम दे पाएंगे क्या? कैन वी आइडेंटिफाई इट? ये चैलेंज है, और ये चैलेंज का हम पक्का स्वीकार करते हैं. वी हैव एक्सेप्टेड दिस चैलेंज, एंड आई एम श्योर कि अगले 5-10 साल में एटलीस्ट 45 लाख स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स महाराष्ट्र का ऐसा होगा who कैन ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वहां के सिस्टम चला पाएगा. इस प्रकार की रचना लगाने का प्रयास में हम हैं. और इसलिए मेरा मानना यह है कि चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में लेते हुए जो एजुकेशन सिस्टम्स में चेंजेस करने हैं, और उसमें आप जैसों का पार्टिसिपेशन, कई वाक्य संभाल के बोलने पड़ जाते, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं हूं, मिनिस्टर हूं. बट एजुकेशन कैन बी थॉट एज एन इंडस्ट्री, बट रियली इज इट अ इंडस्ट्री और समथिंग एल्स? और इसमें मुनाफा नहीं होगा तो कोई आएगा नहीं, ये भी मैं समझता हूं. नोबडी विल कम फॉर द सोशल कॉज. आजकल इंडिया राइट टू एजुकेशन के कारण, मंत्रा साहब, ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट वहां से कानून बनाती है, खर्चा हमको करना पड़ता है, बिन पैसे के कानून वहां से पास होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुंबई में इफ यू एक्सपेक्ट सो मच ऑफ लैंड, सो मच ऑफ वॉल्स फॉर द स्कूल्स, इतना ग्राउंड, ये ग्राउंड, तो 50% स्कूल्स मुंबई के बंद हो जाएंगे हमारे. वी डोंट हैव एटमॉस्फेयर. और इतनी अगर जगह किसके पास है तो वो स्कूल नहीं डालेगा, वो तो रियल एस्टेट का बिल्डर बन जाएगा, डेवलपर बन जाएगा. तो फिर हम इसमें राइट टू एजुकेशन का कॉज बहुत सही है, इंपॉर्टेंट भी है, बट सिंस इट इज एन कंकरेंट सब्जेक्ट, एंड आई एम थिंकिंग टू हैव एन राइट टू एजुकेशन बिल फॉर महाराष्ट्र सेपरेटली, बिकॉज देयर आर लॉट नंबर ऑफ थिंग्स, बिकॉज वी हैव शुगर इंडस्ट्रीज, और जो शुगर केन कटिंग के वर्कर्स होते हैं वो इतने माइग्रेट होते हैं, तो उन माइग्रेटेड वर्कर्स के बच्चों के लिए स्कूल का आरटीए में कुछ सोचा नहीं है, तो हमको सोचना पड़ेगा. हमारे कई लोग आसपास के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड में जाते हैं, तो आई वुड हैव टू टाई अप विद दोज गवर्नमेंट फॉर 6 months फॉर दिस माइग्रेटेड वर्कर्स चिल्ड्रन की, उनकी पढ़ाई आपके यहाँ करो, वी विल स्पेंड फॉर दैट. ऐसी जो व्यवस्था आरटीए में होनी चाहिए वो वहां नहीं है, तो वो मुझे करनी पड़ेगी हमारे. बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू थिंक ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जो माइग्रेटेड है, नॉन स्कूलिंग स्टूडेंट्स है, उनका तो ये बातें करनी पड़ेगी. और ये बातें अगर आरटीई में नहीं है, तो फिर महाराष्ट्र का आरटीई का नया कानून बनाने का हम सोच सकते हैं कि जिसमें इन सब चीजों का अंतर्भाव है. लेकिन बेसिक थॉट प्रोसेस जो चेंज होनी चाहिए. व्हेन आई वाज टेकिंग द ब्रीफिंग ऑफ ऑल माई डिपार्टमेंट्स, हर 5 मिनट बाद एक लाइन आती थी, सर अपना 33,000 करोड़ का बजट है, पर आउट ऑफ दैट 85% हम सैलरी पे बांटते हैं. मैंने कहा सैलरी पर बांटते हैं मतलब क्या? मतलब मैं तो ये सोचता हूं कि ये सैलरी पर बांटना नहीं है, वी आर इन्वेस्टिंग ऑन द स्टूडेंट्स 85% ऑफ आवर बजट फ्रॉम द एजुकेशन. ये सोचो. और आप अगर बच्चों पे 85% ऑफ द 27,000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके रिटर्न्स आपको क्या मिल रहे हैं, और वो रिटर्न्स हमको अच्छा कैसे मिले कि जिससे आगे के 20-25 साल महाराष्ट्र की डेवलपमेंट की हम सोचे. बिकॉज वॉट एवर यू आर इन्वेस्टिंग ऑन द स्टूडेंट्स यू शुड गेट अ रिटर्न फ्रॉम इट. और वो रिटर्न क्या मिलने चाहिए, कैसे मिलने चाहिए. इट इज नॉट मेयर सैलरी, इट इज नॉट मेयर आप तनख्वाह बांट रहे हैं. तो वो स्टूडेंट को डेवलप करने वाली जो मशीनरी है, जो
टीचर्स है, जो प्रोफेसर्स है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो स्कूल्स है, उस पर आप इन्वेस्ट करें स्टूडेंट्स पर, और उससे आपको रिटर्न जो मिलना है, इसमें रिटर्न इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जैसा हम कैलकुलेट करते किसी सड़क का, किसी इरिगेशन के डैम का, वैसे हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये इन्वेस्टमेंट का क्या हो सकता है. इट विल नॉट बी इन मनी, बट इट शुड बी काउंटेड इन सम अदर पॉइंट, और वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं ये कैलकुलेट करना, ये सोचने का बेसिक कंसेप्ट ही अपने यहां नहीं है. एंड आई थिंक वी नीड टू डेवलप दैट कंसेप्ट कि वॉट एवर वी इन्वेस्ट उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा और किस फॉर्म में होगा एजुकेशन का. वो कंसेप्ट जब तक मुझे लगता है कि क्लियर नहीं होती है, तब तक विल सी यार तनख्वाह में पैसा बांट रहे, टीचर्स को खुश कर रहे हैं, हमारे यहाँ स्कूल खोलो, अपने घर वालों को नौकरी पे लगाओ, ये सोच में से बाहर आकर इफ यू वांट टू डू समथिंग बेस्ट, मुझे लगता है कि ऐसे कई चैलेंजेस है, एंड इस चैलेंजेस का आगे चलकर सोचना, एंड व्हेन देयर आर एजुकेशनिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन चलाने वाले आप जैसे लोग यहाँ पर है, तो मैं मानता हूं कि इकोनॉमिक टाइम्स के इस पूरे फ्यूचर ऑफ लर्निंग फोरम के द्वारा ऐसे कई चीजों का चर्चा यहाँ होगी, और वो आगे चल के हमको इट विल बी अ गाइडिंग फोर्स फॉर द गवर्नमेंट. और इसलिए आई अगेन थैंक इकोनॉमिक टाइम्स एंड आई थैंक यू ऑल फॉर गैदरिंग हियर. और इस प्रकार के एक विचार मंथन के प्रोसेस में आप सब इन्वॉल्व है. ऐसे इसमें तो मेरा मानना है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने फुल डे यहाँ पर होना चाहिए, ताकि जो कुछ चले प्रोसीडिंग्स को सुनना और उनसे बात करना. लेकिन आज दिन भर में मैंने सभी एमफुक्टो, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, ऐसे 12 अलग अलग मीटिंग्स आज लगाई है, क्योंकि उनके पहले सैलरी का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं ताकि आगे काम करने में आसान हो जाएगा. इसलिए आई हैव ऑलरेडी प्लान ऑल द मीटिंग्स, आई विल नॉट बी एबल टू सिट, बट श्योरली विद इन अ डे और टू लांबा जी, आई एम होप दैट आपका पूरे योर टीम विल ब्रीफ मी और गिव मी द सिनॉप्सिस सो दैट इट विल बी श्योरली अ गाइडिंग फोर्स. मतलब सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रहा हूं, तो दिल से कह रहा हूं कि यहाँ इस प्रकार के जो डिस्कशंस में पॉइंट्स आते हैं, वो कई बार इट विल हेल्प अस टू get it implemented in our system, and I hope that. Again, I thank Economic Times and all you. Thanks. Have a very nice day. Thank you, sir. That's the Honorable Minister HRD, Government of Maharashtra, Shri Vinod Tawde. Thank you, sir, for being here with us, making it so very special, taking time off. May I please request Honorable Minister to wait for just a moment. I'd like to request the President, Benetton Coleman Company Limited, to step forward on stage and honor the Minister with a small memento. Mr. Minister, can we have you on the stage for one moment, please? Ladies and gentlemen, the Honorable Minister, Women West Development, Government of Maharashtra, Shri Vinod Tawde. We thank the Minister for his time, for being the keynote speaker, doing the keynote, and of course sharing the ground realities. We expect quite a few of these realities will be addressed today at this forum, the Future Learning Forum. Ladies and gentlemen, Honorable Shri Vinod Tawde. Thank you, sir. Thank you, Mr. Lamba.